Good morning and welcome to yet another session of Oyster. Today on 17th of March 2024, we begin once again from the starting of The Prophet by Kahlil Gibran. Al-Mustafa, the chosen one, who was dawn unto his own day, had waited 12 years in the city of Opheles for his ship that was to return and bear him back to the isle of his birth. And in the 12th year, on the 7th day of Ailol, the month of reaping, he climbed a hill without the city walls and looked seaward, and he beheld his ship coming with the mist. Then the gates of his heart were flung open and his joy flew far over the sea. And he closed his eyes and prayed in the silences of his soul. But as he descended the hill, a sadness came upon him, and he thought in his heart, how shall I go in peace and without sorrow? Nay, not without a wound in the spirit shall I leave the city. Long were the days of pain I have spent within its walls, and long were the nights of aloneness. And who can depart from his pain and his aloneness without regret? Too many fragments of the spirit have I scattered in these streets, and too many are the children of my longing that walk naked among these hills, and I cannot withdraw from them without a burden and an ache. It is not a garment I cast off this day, but a skin that I tear with my own hands. Nor is it a thought I leave behind me, but a heart made sweet with hunger and with thirst. Yet I cannot tarry longer. The sea that calls all things unto her calls me, and I must embark. For to stay through the hours burn in the night is to freeze and crystallize and be bound in a mold. Fain would I take with me all that is here, but how shall I? A voice cannot carry the tongue, and the lips that gave it wings. Alone must it seek the ether. And alone and without his nest shall the eagle fly across the sun. Now when he reached the foot of the hill, he turned again towards the sea, and he saw his ship approaching the harbor. And upon her prow the mariners, the men of his own land. And his soul cried out to them and said, Sons of my ancient mother, you riders of the tides, how often have you sailed in my dreams, and now you come in my awakening, which is my deeper dream. Ready am I to go, and my eagerness which sails full sets awaits the wind. Only another breath I breathe in this still air, only another loving look cast backward. And then I shall stand among you, a seafarer among seafarers. And you, vast sea, sleepless mother, who alone are peace and freedom to the river and the stream, only another winding will this stream make, only another murmur in this glade. And then shall I come to you, a boundless drop to a boundless ocean. And as he walked, he saw from far men and women leaving their fields and their vineyards and hastening towards the city gates. And he heard their voices calling his name and shouting from the field to field, telling one another of the coming of his ship. And he said to himself, shall the day of parting be the day of gathering? And shall it be said that my eve was in truth my dawn? And what shall I give unto him who has left his plough in the mid-furrow, or to him who has stopped the wheel of his winepress?
Am I audible? Yes, Yeah, yes, you are. yes, yes. Yes, yes, fully audible. All right. Rather late in the day, but I thought let me check. Shall my heart become a tree heavy laden with fruit, that I may gather and give unto them? And shall my desires flow like a fountain, that I may fill their cups? Am I a harp, that the hand of the mighty may touch me, or a flute, that his breath may pass through me? A seeker of silences I am I. And what treasure have I found in silences, that I may dispense with confidence? If this is my day of harvest, in what fields have I sowed the seed, and in what unremembered seasons? If this indeed be the hour in which I lift up my lantern, it is not my flame that burns therein. Empty and dark shall I raise my lantern, and the guardian of this night shall fill it with oil, and he shall light it also. Empty and dark shall I raise my lantern, and the guardian of the night shall fill it with oil, and he shall light it also. These things he said in words, but much in his heart remained unsaid. For he himself could not speak his deeper secret. And when he entered into the city, all the people came to meet him, and they were crying out to him as with one voice. And the elders of the city stood forth and said, Go not yet away from us. A noontide have you been in our twilight, and your youth has given us dreams to dream. No stranger are you among us, nor a guest, but a son and our dearly beloved. Suffer not yet our eyes to hunger for your face. And the priests and priestesses said unto him, Let not the waves of the sea separate us now, and the years you have spent in our midst become a memory. You have walked among us as a spirit, and your shadow has been a light upon our faces. Much have we loved you, but speechless was our love, and with veils has it been veiled. Yet now it cries out loud unto you, and would stand revealed before you. And never has it been that love knows not its own depth until the hour of separation. And others came also and entreated him, but he answered them not. He only bent his head, and those who stood near saw his tears falling upon his breast. And he and the people proceeded towards the great square before the temple. And there came out of the sanctuary a woman whose name was Almitra, and she was a seeress. And he looked upon her with exceeding tenderness, for it was she who had first sought and believed in him when he had been but a day in their city. And she hailed him, saying, Prophet of God, in quest of the uttermost, long have you searched for the distances for your ship. And now your ship has come, and you must needs go. Deep is your longing for the land of your memories and the dwelling place of your greater desires, and our love would not bind you, nor our needs hold you. Yet this we ask ere you leave us, that you speak to us and give us of your truth, and we will give it to unto our children, and they unto their children, and it shall not perish. In your aloneness you have watched with our days, and in your wakefulness you have listened to the weeping and the laughter of our sleep. Now, therefore, disclose us to ourselves, and tell us all that has been shown you of that which is between birth and death. And he answered, People of Orphalese, of what can I speak, save of that which is even now moving within your souls?
From here starts the conversation. Then said Almitra, speak to us of love. And he raised his head and looked upon the people, and there fell a stillness upon them. And with a great voice he said, when love beckons to you, follow him. Though his ways are hard and steep, and when his wings enfold you to yield to him, though the sword hidden among his pinions may wound you, and when he speaks to you, believe in him. Though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden, for even as love crowns you to shall, so shall he crucify you. Even as he is for your growth, so is he for your pruning. Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun, so shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth. Like sheaves of corn, he gathers you unto himself. He threshes you to make you naked. He sifts you to free you from your husks. He grinds you to whiteness. He kneads you until you are pliant. And then he assigns you to his sacred fire, that you may become a sacred bread for God's sacred feast. And all these things shall love do unto you, that you may know the secrets of your heart, and in that knowledge become a fragment of life's heart. But if in your fear you would seek only love's peace and love's pleasure, then it is better for you that you cover your nakedness and pass out of love's threshing floor into the seasonless world where you shall laugh, but not all of your laughter, and weep, but not all of your tears. Love gives not but itself, and takes not but from itself. Love possesses not, nor would it be possessed, for love is sufficient unto love. When you love, you should not say, God's in my heart, but rather, I am in the heart of God. And think not you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course. Love has no other desire but to fulfill itself. But if you love and must needs have desires, let these be your desires to melt and be like a running brook that sings its melody at night, to know the pain of too much tenderness, to be wounded by your own understanding of love, and to bleed willingly and joyfully, to wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving, to rest at the noon hour and meditate love's ecstasy, to return home to at the eventide with gratitude, and then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song of praise upon your lips. Next तो is इसको marriage. Let's इसको read this बहुत again. गहर सर बहुत गहरी बात है, इसको एक एक करके दोबारा एक एक लाइन पढ़े। मैं वही अभी तो मैं सिर्फ उसको प्रोज की तरह पढ़ गया हूँ. Let's read हाँ, it line by क्योंकि line. इसको थोड़ा इसका हिंदी में नहीं हुई शब्द कुछ बड़े कठिन है। हाँ, थोड़ा धीरे पढ़िएगा इसमें लव वाले हाँ. से। हाँ, जैसे उसने पहले लाइन में कहता है ना। And then said Almitra, speak to us of love. And he raised his head upon the people, and there fell a stillness upon them. And with a great voice he said, when love beckons to you, follow him. जब Just तुम्हें read प्रेम wherever you पुकारे, want to stop. जब प्रेम तुमको पुकारे उसके पीछे चलो। Chalo. When love इंग्लिश में हाँ, beckons to you, follow him. फॉलो हिम, चाहे उसके रास्ते कितने कठिन हो। कठिनाई भी दिखाता है. हाँ, चलिए Though आगे। his ways are hard and steep, and when his wings enfold you, yield to him.
जब उसके दो पंख पंख तुम्हारे ऊपर उड़ने लगे तो अपने आप को समर्पण कर दो। समर्पण कर दो. समर्पण कर दो। Though the sword hidden among his pinions may wound you. चाहे उसकी पंखुड़ियों में छिपी कटार तुम्हें घायल कर सकती है, शायद ये लाइन का मतलब ये है। Correct. And when he speaks to you, believe in him. जब वह तुमसे बात करे उसमें विश्वास करो। Though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden. उसकी आवाज, लेकिन हाँ, उसकी आवाज तुम्हारे सपनों को ऐसे खत्म कर सकती है जैसे आंधी बगीचे को उजाड़ देती है। for चलिए। even as love crowns you, so shall he crucify you. क्योंकि जैसे प्रेम तुम्हें मुकुट पहनाता है वैसे ही तुम्हारा वध भी करेगा। Even as he is for your growth, so is he for your pruning. हम्म। जैसे तुम्हारे विकास में सहयोग करता है वैसे तुम्हारे लिए और बाधा भी बनेगा वो। प्रूनिंग भी करेगा. जैसे पेड़ को आप हाँ। बड़ा करते हैं तो साइड में उसके नीचे की टहनियां काटते जाते हैं, सो दैट वो ग्रो करे. जी। Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun. जिस प्रकार वह ऊपर चढ़कर धूप में लहराती हमारी शाखाओं को चूमता है, उसी प्रकार नीचे उतरकर धरती में लिपटी तुम्हारी जड़ों को हिलाता भी है। ये बात Exactly. समझ तो So नहीं है, shall he ट्रांसलेशन। descend to your roots and हाँ। shake them in the clinging on to earth. हाँ। Like sheaves of corn, he gathers you unto himself. ठीक है। अनाज, अनाज की इसको गरारी। मक्की 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 की तरह. हाँ। अनाज की तरह वह तुम्हें अपने आप में समेटता भी है। हाँ. He threshes you to make you naked. आप अनाज को जैसे बीजों को अलग करते हैं गेहूं के, हाँ। या हम्म। इसमें कॉर्न का उन्होंने मेटाफर यूज किया है. He sifts you free from your husk. भूसी से अलग करने के लिए तुम्हें छानता है। He grinds you to whiteness. तुम्हें बारीक पीसता है। आटा बना देता है तुम्हारा. बारीक पीसता है। He kneads you until you are pliant. फिर उसको गूंथता है. घूमता है। And then he assigns you to the sacred fire, that you may become a sacred bread for God's sacred feast. फिर तुम्हें आग को समर्पित कर देता है ताकि तुम उसको खाना रोटी बन सको, रोटी की तरह बन सको। All these things shall love do unto you, that you may know the secrets of your heart, and in that knowledge become a fragment of life's heart. ये सब कुछ प्रेम तुम्हारे लिए इसलिए करेगा कि तुम अपने हृदय के रहस्य को जान सको, उस ज्ञान द्वारा परम जीव के दिल की गंध का अंश बन सको। But आमीन। if in your fear you should seek only love's peace and love's pleasure, then it is better for you to cover your nakedness and pass out of love's threshing floor. लेकिन डर से यदि तुमने केवल प्रेम की शांति और सुख की खोज की तो अच्छा है कि तुम अपनी नग्नता को ढक लो। हाँ. प्रेम की कठिन तपस्या से अलग होकर उस क्या क्या इसको कहें, ऋतुहीन संसार में पहुंच जाओ जहाँ ना तो तुम Into पूर्व the में। seasonless world where you shall हाँ, laugh, but not all your laughter, and weep, but not all your tears, all of your tears. जी। ना जहाँ तुम हंस सको पूरी तरह से, ना तुम रो सकोगे। Love gives not but itself, and takes not but from itself. प्रेम जो कुछ देता है वह अपने आप में ही देता है, जो कुछ लेता है वह अपने आप से ही लेता है। Love possesses not, nor would it be possessed. लव पे, प्रेम पे ना तो किसी का अधिकार है ना वो किसी के अधिकार में है। For love is sufficient unto love. प्यार प्यार के लिए सब पर्याप्त है। प्यार को प्यार ही रहने दो, हम्म। कोई नाम ना दो. हम्म। When you love, you should not say God is in my heart, but rather I am in the heart of हाँ। God. पर जब तुम प्रेम करते हो तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि भगवान मेरे दिल में है, बल्कि यह को मैं भगवान के दिल में हूँ। दिल में रहता हूँ. And think not
You can direct the course of love. For love, if it finds you worthy, directs your course. ये मत सोचो कि तुम प्रेम प्रेम को नियंत्रित कर सकते हो। कि प्रेम यदि तुम्हें अपने योग्य समझेगा, वह तुम्हें तुम्हारे संचालन को नियंत्रित करेगा, खुद तुम्हें नियंत्रित करेगा। Love has no other desire but to fulfill itself. स्वयं की परिपूर्ति के सिवाय प्रेम की कोई इच्छा नहीं होती। But if you love and must needs have desires, let these be your desires. फिर भी यदि प्रेम करने के साथ कामनाएं भी रखना चाहते हो तो ये कामनाएं रखो। ये वाली रखो. To melt and be like a running brook that sings its melody to the night. पिघल कर उस स्रोत के समान होना जो अपना मधुर गीत रात को सुनाया करता है। आगे। To know the pain of too much tenderness. अधिकतम कोमलता की पीड़ा को जानना। To be wounded by your own understanding of love. स्वयं और प्रेम की जानकारी से घायल होना और खुशी से प्रसन्नता पूर्वक रक्त बहाना। To bleed willingly and joyfully. To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving. उड़ान भरते हुए दिल के साथ सुबह को जागना और प्यार के साथ पूरी तरह भरपूर बीते दिनों को धन्यवाद देना। To rest at the noon hour and meditate love's ecstasy. दोपहर को विश्राम करना और प्रेम की खुशी पे मनन करना। To return home at eventide with gratitude. शाम को कृतज्ञता पूर्वक घर लौटना। And then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song अपने of praise upon your lips. अपने प्रेमी के लिए अपने दिल में प्रार्थना करना और होठों पर प्रशंसा का गीत लाकर सो जाना। तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं। ऋषि सर, ऋषि तो सर कहाँ थे? आपकी ट्रांसलेशन सुनकर मैं गदगद हो गया हूँ। अच्छा। यू आर यू आर ए परफेक्ट ट्रांसलेटर। अरे अच्छा, ऐसा क्या है? आपने कहीं मेरे ख्याल किया है कुछ ऐसा ट्रांसलेशन का? नहीं नहीं, एक एक लाइन तो पढ़ रहे हैं सर, एक एक लाइन। नहीं, एक एक लाइन तो पढ़ रहे हैं, पर उसको हाँ। इतने परफेक्ट वे में, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ब्रेक, इट इज रिमार्केबल। नहीं, शायद दूसरी बार पढ़ रहे हैं इसलिए ना आपने कहा ना पहले एक बार पढ़ा है और दूसरी बार पढ़ा, शायद इसलिए हो गया। पहली बार भी शायद ना हो पाता है, हो सकता है। हाँ। चलो, इट इज गुड। हाँ, पर फिर भी अब देखिए ट्रांसलेशन के बाद भी काफी कुछ चीज गहरी बातें हैं इस हाँ, इस बारे में। हाँ, तो इसमें क्या। एक चीज तो मुझे समझ में नहीं कि हम सबको एक्सप्रेशन करनी चाहिए, कहीं भी मौका मिलता है तो ये हाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये हमारे मन में तो होता है सब चीजें जो है ये, जी। इससे या हो सकता है थोड़ा सा नजदीक हो इसके, नॉट हाँ। एग्जैक्टली द सेम वर्डिंग्स, लेकिन हम्म, हम कई बार एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसी को। ठीक है जी, नॉट ओनली जी जी इन जी। दिस कंटेक्स्ट, एवरीवेयर। मतलब अगर कोई अच्छी भावना या कोई चीज आती है तो वी शुड एक्सप्रेस। मेरे हाँ, को ऐसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक्सप्रेस तो करना चाहिए अगर हमें जैसे हम कई बार होता है कि दिल में ही रह जाती है जो हमारे दिल की बात, और हम कहीं भी जो है एक्सप्रेस नहीं करते और अपने अब ही दिल में खोए रहते हैं। कह लीजिए जिब्रान जो बोल रहा है, बड़ी अलग अलग बातें बोल रहा है वो। ये हम्म, उसने किताब जो है कहते हैं 20 से 22 साल में लिखी उसने किताब। ये जो किताब है मात्र 20-22 चैप्टर, इतने साल लग गए उसको। तो उसने जो उसको समझ आता है लिखता गया, वो बोलता गया। तभी हम लोग क्या करते हैं, आता है सोचता है मन में, भूल जाते हैं इस बात को। ये व्यक्ति है उसको लिखता रहा, और जो इसको सोचता रहा, इसको दिमाग में आता रहा, और इकट्ठे हो गए कि बहुत शानदार किताब बन गई ये वाली। तो ये फर्क होता है हम लोगों में और इन बड़े लोगों में है शायद। तो लव के बारे में जो ये तो यही बोल रहा है कि भाई कंप्लीट सरेंडर, और कुछ भी नहीं है। ये अगर आप सरेंडर करते हैं तो आप इसको लव कहिए, वरना आप इसको लव मत कहिए। लव का मतलब ही ये सीधे लेके चलता है कि सरेंडर करना है। जो मैं समझ पाया हूँ सर, ऋषि सर आप क्या समझ पाए इससे? और एक जो पोएट किस लेवल पे पहुंचा हुआ है, क्या उसकी भावनाएं हैं, उसको देखो। जी। दैट इज एक्सप्रेसिंग, वो अपना दिल की बात कर रहा है। हम्म। तो आप जैसे मैं अपना तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ो तो उसके अंदर उन्होंने अपना भाव प्रकट किया है। जी देयर आर टाइम्स व्हेन यू गेट ओवरवेल्म्ड कि यार इतना प्रेम, इतना प्रेम। जी जी। आप आपने उसमें इसके अंदर भी उसने अपना दिखाया है कि भैया देखो, मतलब फॉर अ पोएट टू एक्सप्रेस ऑल दिस।
जी। What level of ecstasy and love would we be at? सर आपको क्या लगा कि लव के बारे में क्या कहना चाहता है, व्हाट इज लव इसके हिसाब से? हिंदी गाना है ये, इम्तिहान लेता है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। क्या? हाँ, वो जिंदगी के बारे में है। ये तो ये भी इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। नहीं, हाँ, कुल मिला इसके के ये अंदर कह रहे हैं, आपको, इस लव मीन सरेंडर, सरेंडर करो सब कुछ, ये कह हाँ, रहे हैं। हाँ, मुझे एक और वो पंजाबी में, आपको कौन की तरह निकालेगा, उसको सीव करेगा, पीसेगा, आटा हाँ, बनाएगा। तो आपको सरेंडर करना है। अपना हाँ। दरिया भी डाल दिया है उसने, गालिब को भी ले आया, किस किस को ले आया बीच में। मैं आपको थोड़ा सा लाइन याद कराता हूँ, एक ना पंजाबी में ना, कि गुरु नानक की बानी है, गुरबानी में लिखा है, जो तो प्रेम करन का चाहो, सिर तर तली गली मेरे आओ। कहता, बड़ी सेम लाइन, सेम बात शायद कह रहा है वो। कहता, जो तो प्रेम करन का चाहो, अगर आपको वाकई प्रेम करना है, प्रेम में आना ही है, सिर तर तली गली मेरे आओ, अपना सर हाथ पे रख के मेरी गली में चले आओ। वो भी कह रहे हैं कि सरेंडर करना सीखो, तब प्रेम की बात करो आप। तो ये कमाल की बात है, इतने बड़े बड़े लोग कभी कभी बातें एक जैसी कहते हैं। उस दिन आप बता रहे थे ना उसका, अमीर खुसरो का, कौन आप सुना रहे थे, कौन बता रहा था कि भाई अपनी ईगो बाहर छोड़ के आओ पहले, निजामुद्दीन हाँ। औलिया को जो मिलने जाते थे, हम्म। तो हाँ, लीव योर ईगो एट द गेट, देन बिल्कुल एंड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। So we अरे live for person, live for God. Everything, it's a process. जी जी जी, हाँ। एक एक और भी है, तो है ना, एक रूमी है, आपने सुना होगा, राइटर है, राइटर। हाँ, हाँ, तो रूमी का भी इस तरह एक चैप्टर है लव के बारे में, मुझे बाकी तो याद नहीं है, उसकी लाइन थी कि व्हाट आई एम टू डू बट सरेंडर टू द विल ऑफ माय बिलवड। ये रूमी ने लाइन बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, व्हाट आई एम टू डू, व्हाट आई एम टू डू बट सरेंडर टू द विल ऑफ माय बिलवड। तो कुल मिला के यही बात ये कह रहे हैं, जो गुरु नानक कह रहे हैं, रूमी कह रहा है, और ये भी खलील कह रहा है। तो फाइनल बात तो यही है कि व्हेन यू लव, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। ईगो के साथ नहीं चल सकते आप। लव एंड ईगो कैन नॉट गो टुगेदर। जैसे पिछली बार हम कहते हैं कि अंधेरा और वो जो अ, अंधेरा और जो अपना दिन है, सूरज, इकट्ठे नहीं, इकट्ठे आ ही नहीं सकते। इकट्ठे नहीं जा सकते वो। करेक्ट। हाँ, तो वो वाली बात थी। आगे चले सर अभी। जैसे आप कहो। हाँ, चल लेते हैं, चलो, चलिए। इसको ट्रांसलेशन करनी है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर ट्रांसलेट करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, then we'll. ट्रांसलेट, चलिए। Then Almitra spoke again and said, "And what of marriage, master?" हम्म। And he answered, saying, "You were born together, and together you shall be forevermore. You shall be together when the white wings of death scatter your days. You shall be together even in the silent memory of God. But let there be spaces in your togetherness, and let the winds of heavens dance between you. Love one another, but make not a bond of love. Let it rather be a moving sea between the shores of your soul. Fill each other's cup, but drink not from one cup. Give one another of your bread, but eat not from the same loaf. Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone. Even as the strings of a lute are alone, though they quiver with the same music. Give your hearts, but not into each other's keeping, for only the hand of life can contain your hearts. And stand together, yet not too near together. For the pillars of the temple should stand apart, and the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow. नहीं, खत्म हो गया, हाँ। ये टॉपिक खत्म हो गया। ये तो बड़ी सिंपल सी बात लिखी है उसने, ये कहा है कि मैरिज का मतलब है कि आप साथ साथ रहो,
हाँ, एक बट वो एक दूसरे पे हावी ना हो, और एक देश दूसरे वो साथ ना एक दूसरे पे वो ना कर जाओ, एंटर ना करो एक दूसरे के। बड़ी अच्छी बात है, कहता है जब पिलर बॉन्ड होते टुगेदर एंड टुगेदर यू शैल बी फॉरएवर मोर, कि हैं, साथ तो तुम हाँ, रहोगे, संग तो बस रहेगा। साथ रहो पर एक दूसरे पे हावी नहीं होना आपने। You जिससे shall be बड़ा अच्छा बात together कहता है। when the white wings of death scatter your days. हाँ, A, you shall be together even in the silent memory सेल्फ of मेमोरी ऑफ गॉड, हाँ। बट लेट but देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस, कहता है आपके let there इकट्ठे be होने में भी थोड़ा फासला होना चाहिए। लेट द विंड्स ऑफ हेवन डांस बिटवीन यू, और जो यानी स्वर्ग की जो चल रही है, विंड चल रही है, हवाएं चल रही हैं, वो आपके बीच में से जाएं। बड़ी अच्छी बात कहता है वो ना, लव वन अनदर बट मेक नॉट ए बॉन्ड, एक दूसरे से प्यार करो पर एक दूसरे से जुड़ मत जाओ, एक दूसरे के साथ जुड़ मत जाओ। तो आगे पिलर की बात करता है कि जैसे मंदिर में पिलर होते हैं, वो सारे इकट्ठे हैं पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते वो, है ना। correct. एक फिर सेकंड आगे, से हाँ, श्याम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? टुडे श्याम जी has joined us. हाँ, श्याम जी। हैंड तो रेस किया था अनम्यूट। उन्होंने। श्याम अनम्यूट। श्याम यू आर अनम्यूट। वो कहते हैं एक दूसरे को प्रेम करो कि प्रेम का बंधन मत बांधो। हम्म, एक बड़ी अच्छी लाइन कहता है, एक दूसरे के प्याले को भरो मगर एक ही प्याले से मत पियो, है एक ना ही इसमें प्याले से लाइन? मत। एक प्याले से मत पियो, एक दूसरे को अपनी रोटी दे दो पर एक ही रोटी से मत खाओ। हाँ, अगली लाइन कह रहा है, एक साथ गाओ और नाचो और उल्लास करो, लेकिन हर एक का अलग अलग आइडेंटिटी रहने दो। क्या बढ़िया बात है। और उसके अगली बड़ी अच्छी लाइन है, जैसे वो कहता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के, कहता तार अलग अलग होते हैं, सब एक फासले पे होते हैं, मगर जब सब मिल जाते हैं तो एक म्यूजिक बनाते हैं। संगीत बन जाता है। हाँ, फिर कहता है एक दूसरे को अपना दिल दे दो, एक दूसरे को के ऊपर उसके ऊपर वो ना करो, हावी ना हो, कंट्रोल मत हो, क्योंकि तुम सिर्फ परम जीव के हाथ ही तुम्हारे दिल जो है वो कंट्रोल कर सकता है, ऊपर वाला। यहाँ पे लाइन आती है, एक दूसरे के निकट खड़े हो लेकिन तुम निकट नहीं हो, क्योंकि मंदिरों के जो पिलर होते हैं अलग अलग होते हैं। एक और अच्छी लाइन, लास्ट लाइन तो और भी अच्छी है, कि वो जो क्या इसको क्या कहते हैं, कौन सा पेड़ है ये? साइप्रस का पेड़, दूसरा कौन सा है? ओक, इट्स अ बिग ट्री, जैसे बड़ का पेड़ होता है, बड़े हाँ, पेड़ बड़ होते का, हाँ, हिंदी में शायद बलूत कहते हैं मेरा ख्याल में। हाँ, हैं। ये बलूत और ये साइप्रस का जो पेड़ होता है, एक दूसरे की छाया में फल फूल नहीं सकते ये, वहां अलग अलग खड़े होकर बड़े अच्छा अच्छा वो कर सकते हैं। तो शादी के बारे में इसने ये लिखा है, बहुत शानदार बात है। इकट्ठे रहो सब ठीक है, पर आइडेंटिटी मेंटेन करने दो एक दूसरे को। सर एक ना बुद्ध में ना, जब बुद्धिज्म में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं वो कहता है हर बुद्ध के पास, हर व्यक्ति के पास चार गुण होने चाहिए, बुद्ध कहते हैं, हम्म, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो चौथा जो है ना, मैत्री जो समझते हो, मैत्री मतलब होता है लव, करुणा कंपैशन, मुदिता होता है कि औरों की कामयाबी पे खुश होना, लास्ट में एक वर्ड कहता है उपेक्षा। ये वही वाली बात है, उपेक्षा वो कहता है वो, एक बड़ी सुंदर लाइन कहते हैं बुद्ध, कहते हैं इंसान भीड़ में रह के भी अकेला रह सकता है। तो यानी अब ये अपनी आइडेंटिटी जरूर मेंटेन कीजिए, अब कहीं भी रहिए, और दूसरे की आइडेंटिटी जो है उसको मेंटेन करने दीजिए। तो शायद यही बात, ये बुद्ध वाली बात यहाँ ये कह रहे हैं। आपने रूमी का जिक्र किया था, एक उनका कोटेशन मुझे याद आ रहा है जो हम्म, लवर्स के ऊपर था कि जी, ब्रेक फ्री, lovers don't finally meet somewhere, ओके, they're in each other all along. Your अच्छा, task is not to seek for love, but merely to seek and find all barriers within yourself that are built against it. ओके, कि प्यार तो अपने आप निकलेगा, सिर्फ हमने बैरियर्स बनाए हुए हैं, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं प्यार ढूंढ रहा हूँ। हम्म। और शादी के लिए बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, हाँ, हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा। लव और इसके बारे में। great. लेट अस रिफ्लेक्ट नाउ। कुछ और कोई ऋषि सर इसके बारे में कुछ कहिए, शादी के बारे में। ये ठीक कह रहे हैं, ये आप डिफर करते हैं इससे? ऋषि जी ड्रॉप हो गए, नहीं है रूम में। अच्छा, नहीं है? अरे, ना। अरे, कैसे चलेगा? मेरे सर आप बताइए कुछ। ज्यादा ही भावुक कर दिया हमने ऋषि जी को।
वो लब तो खोजने दीपक चले जी, गए। हम लोग है ना, हम लोग ये सब बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, सुन के, डिस्कस करके, जी, लेकिन हम इनमें से कितना अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं आपकी बात बिल्कुल सही है एक्चुअल सर। में? पर देखिए, उसमें मैं ये मानता हूं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाँ, अगर पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर करेंगे। तो कहता हूँ हाँ, 1%। हाँ, एक बात ये है। परसेंट भी हो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर अगर क्योंकि पढ़ेंगे ही नहीं, हाँ, फिर तो अलग बात। कम से कम उस रास्ते पे चले तो सही। अगर रास्ते किसी और हाँ, पे जा रहे हैं फिर तो कहीं पहुंचेंगे नहीं। मुझे दिल्ली जाना है, मैं अमृतसर की एग्जैक्टली सड़क पकड़ के बैठा हूँ तो मैं दिल्ली नहीं पहुंच सकता। कम से कम सड़क पे तो exactly. आया मैं। हाँ, बस वही वाली बात है। जैसे आज बड़ी सुंदर बातें कही कि शादी के अंदर कहता है स्तंभ की तरह है, बिल्डिंग में खड़े हैं, दोनों पिलर हाँ, होने चाहिए तभी बिल्डिंग खड़ी रहेगी, मगर एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर सकते। तब सारे देखिए पिलर इकट्ठे कर लोगे तो बिल्डिंग कहाँ से रुकेगी? बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। बस हाँ, वीणा हाँ, वीणा की तारे हैं, इकट्ठी कर दो, फिर म्यूजिक नहीं बजेगा। अलग अलग जगह रहेंगी वो, पर म्यूजिक अच्छा बजाएंगे, एक दूसरे अलग अलग अपनी अपनी आवाज निकालेंगे तो। हाँ, तो हारमोनियम के अलग अलग बटन है, वो बटन इकट्ठे नहीं हो सकते, अलग अलग होके भी ठीक। अच्छा म्यूजिक निकालते हैं वो। ये जो कुछ बातें हैं, हाँ, और हारमोनियम के बटन भी काले और सफेद हैं। काले और सफेद है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग है, फिर भी वो निकालते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट हैं, एबनी एंड आइवरी। हाँ, तो एंड येट दे आपकी, लिव इन परफेक्ट हार्मनी। हाँ, आपकी जो पहचान है ना, बस वो अपने आप बनती ना, कि दूसरे पे एक वो कहता लव में एक इम्पोज नहीं करना दूसरे के ऊपर, शादी में हो या, एग्जैक्टली। हाँ, इम्पोज बिल्कुल नहीं करना। ये कुछ बातें बड़ी शानदार बातें पता में सबको होती हैं। हम्म। हाँ, पर ये कभी कभी, in these days basically we call that giving space to each other. यस, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। स्पेस, I just give you a very small example that जी, uh, we've been married from last 25 years and my wife is a vegetarian हम्म, and our family is basically a non-vegetarian. But ओके, we never forced even for a single day that you should eat or you should not eat this or something like that. So this is like a carrying on the. It's a very small example, but that is like not forcing someone's identity, which basically likes or dislikes, and not जी, intrusion into the private area. Rather than it's like keeping a distance and honestly be compatible by giving a space to others and the likes and dislikes of the each individual. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे याद है मैं हॉस्टल में था तो हम लोग ना, जब संडे को वहां पे ना कुछ लोग के लिए नॉन वेज बनता था, हम हॉस्टल मेस में थे, तो वीवर दोस्त नॉन वेज नहीं लेते थे। तो मेरा एक दोस्त नॉन वेज वेजिटेरियन मेरी तरह, वो उनके दूसरों के टेबल पे जाके बैठ के बोलता था, तुम क्या खा रहे हो अपने अंदर, तुम कब्र बना रहे हो तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारा पेट कब्र बन गया, हड्डियां जैसे कब्र में होती हैं वगैरह वगैरह। तो मैं उसको कहता कि यार तुझे क्या फर्क है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? उसने तेरे को आके कभी कहा है दूसरे टेबल पे हाँ, कि तू ये क्यों घास फूस क्यों खाता है? तो ठीक है, उसके लिए पास भी शब्द होंगे, पर होता ही है। जो आदमी शराब पी रहा है, दूसरा आदमी जाके उसको कहेगा शराब पीनी बहुत खराब बात है, हम्म, उसको बार बार समझाएगा उसको जाके शराब पीनी बुरी बात है, क्योंकि उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे बढ़िया चीज है। ये बड़ा स्टैंडर्ड अपने आप से तय कर लेते हैं, स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, ये बड़ा वो है रहता है। Yeah. होलियर अपनी पहचान को हम ना बताना चाहते हैं कि मैं ये हूँ। होलियर अब देन डाउ। दूसरे आदमी को जो करना कर रहे हो, अपनी पहचान Yeah. खुद देख ले और देख लेंगे। Yeah. अब Don't impose yourself. हाँ, अपनी आइडेंटिटी मत बताओ कि मैं ये जो, और मैं सबसे बढ़िया हूँ। मुझे अच्छी एक बड़ी छोटा सा घटना याद आई, आई थिंक टाइम भी हो गया, बताता हूँ। हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा आपने सब ने। Yes, हाँ, yes. तो हेनरी फोर्ड फिर इंग्लैंड आया उसने, तो उसने आके सब जगह देखा उसने, एक दो उसको दोस्त से उसे मिलते हैं। तो हेनरी फोर्ड का एक दोस्त था, हेनरी फोर्ड ने कार बनाई थी, पर प्रॉब्लम ये है कि वो कार तो उसने बनाई, पर वो अपनी पुरानी कार में ही जो सबसे पहले बनाई थी उसी में यात्रा करता था। वो बहुत सारे मॉडल वॉडल बन गए उसमें, उसको अच्छी लगती थी वो पुरानी सी कार हो गई थी। तो वो और उसका एक दोस्त है जो फायरस्टोन, जिसने सबसे पहले टायर बनाए थे रबड़ के, उसको ले लिया उसने। और एक बड़ा वो कवि था वेलस, जो उन दिनों बड़ा मशहूर अंग्रेजी का पोएट है, वो उनका दोस्त था। और तीनों का चलो जरा घूमने चलते हैं, चल पड़े। और तीनों की दाढ़ी बड़ी हुई थी, ट्रेवल कर रहे थे, ज्यादा वो नहीं थे। तो एक जगह पेट्रोल भरवाने के लिए रुके वो, तो जो पेट्रोल भर रहा था, तो वो उसको, उसने जब पास आया उसने कहा हेनरी फोर्ड ने
या तुम्हें लगता है, तुम्हें पता है तुम किसी गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हो? मैं मैं वो आदमी जिसने दुनिया की सबसे पहली वो कार बनाई है, दुनिया की सारी मोटरों कारों का मालिक मैं हूँ। तो आदमी बड़े गौर से देखा, अनपढ़ सा आदमी था, चुप रहा वो। तो फिर उसको लगा ये हेनरी फोर्ड इस गाँव में क्या करने आया, क्या एमी पता नहीं, और है अगर है भी हेनरी फोर्ड, ये बता क्यों रहा है मुझे? अपना पेट्रोल भरता रहा। और उसके बाद फिर उसने कहा कि तुम पता है जो पीछे बैठे हैं मेरे, वो फायर स्टोन है, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले टायर बनाया, टायरों के मालिक है। मुझे फिर पीछे देखा, ठीक है, और हेनरी फोर्ड को लगा इसमें एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है इस आदमी में। उसे पता है, उसने कहा पता है जो तीसरा आदमी कौन है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने पेट्रोल भरने वाले डंडा उठा लिया नीचे से। उसने कहा ना तुम ये मत कहना ये आदमी परमात्मा से दुनिया बनाई है। कहता सिर खोल दूंगा तुम तो तीनों का मैं। तो उसके बाद हेनरी फोर्ड ने कहा कि फिर एक बार लिखा, कहता उसके बाद मैं तय कर लिया कि मैं अपने बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कहता अब तुम ये कहोगे परमात्मा जो पीछे बैठा तीसरा, इसने दुनिया बनाई है। चलिए, हो गया टाइम से, चले फिर। उसे उसे ये जवाब देना चाहिए था, तुम हेनरी फोर्ड हो गए लेकिन मेरे पेट्रोल पंप पे आए बिना तुम्हारी गाड़ी चलेगी नहीं। सर बात ग्रेट। ऐसी है। हर आदमी जो नहीं है बनना चाहता, जो है वो बनना नहीं चाहता। अब देखिए, बुद्ध जो है वो भिखारी हो गए। नहीं सॉरी, बुद्ध क्या थे, एक राजकुमार थे, एक राजकुमार भिखारी हो गया। मगर भिखारी जो है वो भिखारी नहीं हो सकता, क्योंकि भिखारी को तो राजकुमार बनना है, जो है ना आप। हाँ, आप उसके थोड़ा और ऊपर जाना चाहते हो। हाँ, बुद्ध भिखारी हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रिंस है। या वो अनलेस देयर इज वेरी ग्रेट डेप्थ के लोग को कहते हैं ना, ये मैं तो पहले संसार, मैं तो बस अब संसार छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने अब संन्यास ले लेना है। अरे तुम्हारा है क्या संसार में जो तुम छोड़ के जा रहे हो? या और तो क्या पहले है। जीतो, सब पूरा संसार बनो, पहले अलेक्जेंडर बनो ना, तब छोड़ने की बात करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात है। करे बिना, कुछ किए बिना तुम कहते हो जी मैं अब ये सब मोह माया से बाहर निकल रहा हूँ, मैं ये सब छोड़ने लगूं, पहले जीतो तभी तो उसको छोड़ोगे। सब वही प्रिंस कह है रहे तो हैं। छोड़ोगे ना, तो संसार भिखारी क्या संसार छोड़ेगा? अमीर आदमी कहता है मैं साधु बन जाऊंगा, खुशी ढूंढ रहा हूँ। एक भी भिखारी बता दो जो कहता है मैं खुश हूँ? हाँ, एक भी बताओ भिखारी जो रास्ते में बैठा है, जो कहे मैं बहुत खुश हूँ और भिखारी रहना चाहता हूँ मैं, वो पैसे इकट्ठे कर रहा है कि मुझे सारा मकान भूख ही बनाना है, भूख मुझे ही नहीं बड़ा खत्म बनना होगी। है। तो ये जहां जो है ना, वो आगे कुछ और ढूंढ रहा है वो। हाँ। डिस्कनेक्ट या ऋषि सर आप चले गए थे, आपके विचार नहीं सुने हमने। एक्चुअली इंटरनेट बंद हो गया था जी मेरा ना, फिर अच्छा मैंने अच्छा रीस्टार्ट किया उसको। हमें अच्छा। लगा कि आप ज्यादा ही भावुक हो गए, ज्यादा ही लव की बात कर दी, गायब हो गए, कैमरा ऑफ कर दिया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं था जी। कहता ना कि देखो आप जी, आप थोड़ा आप बताइए मैरिज के बारे में, जो जो उसने कहा कि मैरिज के बारे में आपका कुछ देखो मैं तो क्या जरूरत है। दूसरी दूसरी चीजें जैसे आपने बताया, गाड़ी और टायर और पेट्रोल पंप एक हाँ दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हाँ। मतलब दूर दूर है सब चीजें, ठीक है जी। जी जी। तो हम सब मतलब नॉट ओनली मैरिज, आई विल से बॉन्ड, ठीक है, आई हम्म, विल यूज द वर्ड बॉन्ड। हमारा हम्म, हर जो हम जैसे इवन डिजायर्स भी बॉन्ड है जी। तो जी लेकिन हम उसके वो ना बने, अपने की नेसेसिटी ना बने कि भाई उसके हम हमें ऊपर हावी हो जाए वो चीज। लेकिन बिना हम्म, वो किसी चीज के गुजारा नहीं है जी, ठीक है। जैसे टायर के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, पेट्रोल हम्म, के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, एक दूसरे के रहे। लेकिन बिल्कुल। इसी चीज को हम गहराई में अगर ले जाएं तो मैरिज भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए, या एक ऐसा प्रेम समझ लीजिए जो हम्म, एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर होए और हावी ना हो। जी जी, बिल्कुल सही कहा। डेडिके आई मीन समर्पण, समर्पण। जी जी। चैताली भी है आज। चैताली, हाँ इताली जी, है। मैं हूँ। चैताली यू प्लीज ऑल्सो स्पीक आउट समथिंग। दिस इज सच अ टॉपिक एनीबडी कैन स्पीक एंड ऑल हैज एक्सपीरियंसेस। मुझे तो अभी समझना है, मुझे आपने जब हिंदी में ट्रांसलेट किया है
जी समझ आया। थोड़ा बहुत समझ है, अभी उसको और भी समझना है, तो मुझे कहने के लिए कुछ है नहीं। चलिए अगली बार से हम कोशिश क्या करेंगे कि एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। प्रॉफिट की अमेजोन के ऊपर हिंदी ट्रांसलेशन भी है। जैसे है You would like to buy that, you can all go ahead and download it or buy it, तो पर वो whichever. मजा नहीं आएगा एक एक लाइन पढ़ के ना I know, नहीं, मैं अगर ही कह रहा हूँ कि अगर किसी को ज्यादा उसमें है, so हम that is हाँ मिलती also होगी मुझे प्रॉफिट तो बहुत भाषाओं में छपी किताब है, 100 से ज्यादा भाषाओं में किताब छपी है वाली। 15 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, हाँ, मेरे ख्याल हर भाषा में मिल जाएगी किताब। हाँ हाँ। so for better word meaning. Sham, you're on mute. We can't hear you. Unmute yourself first. श्याम है या आज? हाँ, अब वो विवेक लेटे का हुए। हाँ, मेरी भी कुछ अभिव्यक्ति है, मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ जी that कहिए। we have to respect and adjust with the diversity of human beings. Not only human beings, with the entire ecosystem जी are all co-planetary beings, जी and the interdependence amongst all. The interdependence is very important. जो आपने कथा सुनाई वो हेनरी फोर्ड की, वो बिल्कुल उस पे इंटरडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जी And once you understand and you can enjoy the interdependence. और वो एक शेर याद आता है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. एक जो सफरिंग का डायमेंशन है शायद वो मिस हो रहा था. वी हैव टू सफर इन एक्सटेसी, दैट इज लव. जी तो ये लव का शेक्सपियर ने भी अलग अलग कहा है, इट नेवर ऑल्टर्स, यू नो, वो प्यार को प्यार है. जी जो उसकी सोनेट है उसमें, लव इज नॉट लव दैट alters or changes when alteration finds. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. प्यार अभी भी एक अनडिफाइंड सब्जेक्ट है, प्रेम अभी भी एक अनडिफाइंड सब्जेक्ट है. ये फीलिंग है, ये नाम नहीं है. नाम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ कपिल सर बार बार लाइन बोलते हैं ना, प्यार बहुत को प्यार ही रह बहुत गया। टाइम के बाद मैं रिज्यूम कर रहा हूँ ड्यू टू माय पर्सनल रीजन. आई एम वेरी हैप्पी. बैक श्याम जी. अभी कैसा है जी श्याम जी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? बिल्कुल ठीक है सर. मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी आज 3 महीने हो गए, एग्जैक्टली 17 दिसंबर को हुई थी. तो अब ठीक हो बिल्कुल. जरा सो रहा था, सोता ज्यादा हूँ, इसलिए अब बिल्कुल ठीक हूँ. मैं जी welcome. आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की ऑल द बेस्ट. नहीं वी दुआओं से बिल्कुल ठीक. हाँ हाँ. वी मिस्ड यू अ लॉट. अब आई मिस यू ऑल. मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। हाँ जी सर. जी सर ये अभी इकोसिस्टम की बात हुई है, हम जी लव की बात कर रहे हैं, जी और इसी में वेज नॉन वेज की भी बात हुई है. जी तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है, हम्म अगर हम इकोसिस्टम में हम सारे हैं, वी ऑल आर कनेक्टेड and we have love for everyone, हम्म then how can we kill for our pleasure? हम्म और मैं जब प्यार करूंगी, और अगर हमारी भी आत्मा है, उनका भी आत्मा है, मीट फिश, और वो दोनों आत्मा जब मिलेंगे, अगर वो पूछेंगे तो वो अपना डिजायर और प्लेजर के लिए मुझे कत्ल किया, तो मेरा क्या कसूर था? इसका जवाब हम क्या देंगे? Chaitali, my opinion on this, again, it's a question of what are your options. तो आप कह रही हैं कि जो एनिमल्स को हमने किल किया और उसको हमने, हाउ डू वी जस्टिफाई दैट? ओके. इन गॉड्स क्रिएशन प्लांट्स में भी वही लाइफ है, तो फिर तो हम सांस लेना ही बंद कर देते हैं. हम आप प्लांट आप जब आटा बनाते हैं, आप बीज लेते हैं गेहूं के और उसको पीसते हैं, मतलब यू आर क्रशिंग बेबीज. हाउ इज दैट ह्यूमन देन? तो ये तो फिर कर्मा के ऊपर एक अलग डिस्कशन लेवल पे चली जाएगी. तो हर बंदे का अपना एक लेवल है. एवरीथिंग हैज अ फॉर्म ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड, be it minerals, be it plants, be it animals, be it human beings. There are tribes which eat human beings, human flesh.
So let's not get into judging. Then there is no end to it. There is no, the early bird catches a worm. वो बेचारे वर्म की क्या गलती है, वो तो सुबह सुबह टहलने निकला था. तो तुम जस्टिफिकेशन करने लग जाओगे तो देयर इज नो जस्टिस इन दिस वर्ल्ड. ये सो तो बना, ईच इज ओन. ये तो बनाने ईच वाले इज भी ओन. है. अब बनाने वाले अब देखिए चिताली, जो वल्चर है, चील है, हाँ. अगर वो मांस नहीं खाई जिंदा नहीं रहेगी. भगवान ने उसको बनाया, उसको मांस ही खाना है. अब अब लॉयन है, लॉयन घास इतनी पड़ी उसके आसपास, पत्ते पड़े, वो खा ही नहीं पाता, भूखा मर जाएगा. अब I was walking the other day and a car passed by and it killed a squirrel which was running across the road. बड़ा बुरा लगा, क्या बेवकूफ इंसान है, क्या इसने कर दिया. एंड मैं वापस आ रहा हूं तो उसी स्क्विरल को एक कौवा खा रहा है. हम्म. तो ये नहीं हुआ कि भगवान ने वो कौवे के लिए खाना भेजा है. तो बेसिकली कपिल, इसमें क्या चैताली, यू नो, इट इट्स इवन्स लाइफ आउट. साइकिल. जो आया है वो जाएगा, वो जो आया है वो जाएगा. और सबका एक लाइफ साइकिल होता है, एक पाथ होता है और एक कॉज बनता है. दैट इज हाउ वी आर सर्वाइविंग. तो टू ईच इज ओन. आप या अपनी That जगह that's करो. an ecosystem actually. हाँ. सिर्फ इंडिया में कुछ हम लोग हैं जो वेजिटेरियन, मतलब क्रिश्चियनिटी के अंदर, इस्लाम के अंदर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है नॉन वेजिटेरियन का और वेजिटेरियन का. तो क्या वो लोग पायस नहीं है? मैं किसी That को कुछ जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मैं वही खुद को पूछ. तो लेट इट बी ना. सो देन वो एनिमल, जिस एनिमल की आत्मा को आप मिलोगे बाद में, वो प्लांट्स जितने आपने सारी जिंदगी में खाए हैं उनकी आत्माएं भी आपको मिलेंगी. दैट इज द तो कार्मिक साइकिल. अल्टीमेटली यू हैव टू गेट आउट ऑफ. इवन द ब्रेथ यू आर टेकिंग इन. आपने कहा जी आज से मैंने खाना भी बंद कर दिया, पानी भी लेना बंद कर दिया, जो आप सांस अंदर ले रही हैं उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं आपकी बॉडी में. जैन जो मुनि होते हैं वो ना, वो हाँ. लगाते हैं अपना, वो कहते हैं जर्म अंदर ना जाए, अपना मास्क बिल्कुल. लगाते हैं, मास्क लगाते करेक्ट. हैं. हाँ, वो उनका कहना होता है कि अगर अंदर वो चले गए जर्म्स, और जर्म्स मर गए, तो हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया. इवन दैट इज अ कर्मा. हाँ, कि वो दैट वो इवन दैट एक्सट्रीम, इज अ कार्मिक साइकिल. एक्सट्रीम वे ऑफ लाइफ है वो. बड़ा आम लोग रह नहीं सकते उस एक्सट्रीम वे ऑफ लाइफ में. जैन मुनि कोशिश करते हैं इस तरह काम करने की. आपको पता होगा, एक सुशील मुनि हुआ करते थे आज से 10-12 साल पहले. तो उनको खांसी हो गई, तो डॉक्टर ने दवाई लिख दी. तो उन्होंने कहा दवाई क्या है, जैन मुनि थे. तो उन्होंने कहा दवाई क्या है, बोले एंटीबायोटिक है. वो क्या होती है, बोले से बैक्टीरिया मर जाते हैं. बोले फिर तो जीव हत्या हो गई, बैक्टीरिया मर जाएंगे, मैं दवाई लूंगा. तो उन्होंने दवाई नहीं ली और खांसी बढ़ गई, उनकी डेथ हो गई. और फिर और जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने उसका बड़ा त्योहार मनाया कि देखो उन्होंने जर्म्स को बचा लिया, खुद अपनी जान दे दी. जान अब ले. ये जो वे ऑफ लाइफ है सबको एक्सेप्टेबल नहीं है वाला, कि अपने जर्म्स को बचा लिया. और अपने, अगर हम कोई भी दवाई खाते हैं एंटीबायोटिक, इसका मतलब हत्या कर रहे हैं बैक्टीरिया की, वायरस तो की, बैक्टीरिया की. हाँ. एग्जैक्ट, तो कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. हाँ, मैं वो वाली जजमेंट बात की आ बात जाती नहीं है. कह रहा हूँ. तो और कहीं चिताली, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. हाँ, और चिताली, हाउ मच आर यू गोइंग टू किल एंड हाउ मच आर यू गोइंग टू लेट गो. और गीता कहती है ना, एक गीता की ये बात भी कहती है कि 84,000 योनियों वाला जो कंसेप्ट है, कि अंत में इंसान तब बनता है जब उसके डिफरेंट साइकिल्स में से गुजरता है वो. अगर कोई आदमी किसी सांप को मारता है, तो सांप जो उसको धन्यवाद देता है एक जगह पे जाके, तूने एक योनि मेरी जल्दी खत्म कर दी, वरना हो सकता है मुझे 20 साल जीना पड़ता. जब उसको इंसान बनना है, ये गीता से सिखाती है. सही गलत नहीं पता, पर गीता यही कहती है. आप किसी आदमी को, अगर कोई चींटी को मार देता है, कोई साधु, वो कहता है कि अच्छा हो गया, तो आपने मुझे ये मार दिया, तो अब मैं अगला जन्म की तैयारी कर रहा हूँ. तो ये भी कभी हो सकता है यू आर एक्सेलरेटिंग देयर साइकिल, या वहां तक आने में. सोच है, ये नजरिया भी है दूसरे वाला. पर इसका मतलब ये नहीं सबको जल्दी 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 मार दो, सब इंसानों को, सब सब जानवरों को. ये भी मतलब नहीं है. Again, you do what is right for your system. Yet you stick to that. वो दूसरा क्यों मार रहा है, क्या कर रहा है, वो अपना कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसका अपना साइकिल है.
ठीक है, चले Hello फिर। guys, thanks a ton. Let's back up on this. थैंक्स डियर, थैंक यू। एक थोड़ी जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा आ रही है मन में। ये बोलिए ना। जब सभी चीजों में सोल है या फीलिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड इवन सो डिड गॉड क्रिएट, एंड आत्मा जो है वो एक दूसरे में प्रवेश करती है आफ्टर इट फिनिशेस इट्स लाइफ in human body or animals or plants. So it means souls are limited in the entire universe. So did God created all the atmas at one time in the beginning, or still the factory is going on? ये शायद संदीपन जी बता पाएंगे। दोबारा बोलिए, दोबारा कहिए। Did God created, because number of souls I think are fixed, because one cannot create new atma, because atma is reborn, re-enters into another body, soul. So did God create all the atmas at one time in the beginning of this universe, or still the factory is going on? सर अगर ये बात हो फिर तो आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, आबादी नहीं बढ़नी चाहिए फिर तो। नहीं, आबादी तो देखने में बढ़ रही है, आबादी तो सिर्फ इंसान की बढ़ रही है ना जी, कोई चीजें कम भी हो रही होगी। ऋषि, मेरा ये अंडरटेकिंग, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि देयर इज जस्ट बट वन सोल। एक गुब्बारा है, उसके अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। गुब्बारा फट गया, हवा कहाँ गई? हवा में मिल गई। एक और गुब्बारा है, उसमें हवा आई। So there is just but one soul. So you go back and you keep coming back. That's one of the Hindu philosophies, but that's what I find comfort in. People may have divergent views, but basically I feel there is just but one soul. There are not too many souls, not two souls. वही परमात्मा है, आत्मा है, उसी के सब हिस्से हैं. So you withdraw from that and you go back to that. एक बलून की तरह बलून डिस्कार्ड हो जाता है, हवा हवा में मिल जाती है. ठीक है, शंकराचार्य का कंसेप्ट यही है कि ब्रह्म और इंसान एक ही है। अद्वैतवाद, अद्वैत जो फिलोसफी, अद्वैत ये कहता है कि इज वन थिंग, यूनिवर्स एंड यू आर वन, नॉट डिफरेंट। और दूसरे लोग हैं माध्वाचार्य, वो द्वैत कहते हैं, वो कहते हैं दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये तो बहुत बड़ी वो है, डिस्कशन है। द्वैत और अद्वैत को अगर पढ़ेंगे तो बहुत शानदार वो चीजें हैं, पर दोनों इतने कन्विंसिंग है कि आपको लगे दोनों ठीक है। अगर द्वैत और अद्वैत दोनों को पढ़ेंगे, शायद आपने द्वैत अद्वैत पढ़ा होगा, नहीं तो फिर अस्सी सर को बोलेंगे कि द्वैत और अद्वैत के बाद थोड़ा बताएं हमें। वेरी कन्विंसिंग बोथ ऑफ देम। आर यू लीविंग? चलिए चलते हैं। ओके, ठीक है सर, चलिए राइट, चलो, थैंक्स अ टन। आज को रेगुलेट करने वाला नहीं थैंक यू था, अस्सी सर होते तो हमें अलग दिशा में जाने देते हैं। सभी गुरु बन रहे थे। अनरेगुलेटेड थे हम लोग। Thank you. चलो, ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस।